अस्सलाम वालेकुम। आमिर साहब आप प्लीज स्टार्ट कर दें, बाकी जैसे ज्वाइन कर बाकी साथ साथ ज्वाइन करते रहेंगे। Assalamu alaikum. This is Amir Iqbal. I'm a computer science teacher, having more than 20 years of experience in teaching O levels and E level classes. Today I'm going to take your class for O1, O1 computer science. Let me introduce the subject first. About the subject, let me share the slides. The subject code it's computer science. This is the name of the subject which you have to appear. It's the computer science, not computer studies. There are two subjects, computer science and the computer studies. Okay, and you are going to appear in the computer science. The subject code for the Cambridge examination, it is the 2210. Dear learners, you will have to appear in two papers, paper 1 and the paper 2. Paper 1 is a theory fundamentals paper, meaning it is a theoretical paper. Which comprises of short question answers. Duration of this paper is 1 hour 45 minutes, and the maximum marks are 75. Okay, and what will be the course contents? There are 6 chapters or 6 sections of this paper, and this paper consists of chapter number 1 to 6 of your recommended book. I'm going to share the book also. This is a written paper and you have to answer all the questions. There are short question answers, in 2 marks question and 4 marks questions, like this one. Okay? Not a lengthy questions. Okay? You have to answer all the questions, and calculators are not allowed in the paper. Okay? Mathematical portion है, but आपको वो manual calculations करनी होगी अगर आप multiplication and division करें. Then we have a paper 2. Paper 2 is a fundamental problem solving, meaning it is a practical type paper, but you have to appear in the written exams, not as a practical exams. And it consists of chapter 7 to 10 of your book. Maximum marks are 75, and there is a one long question in this paper that is called a scenario question. Scenario question is actually 15 marks question. Okay. Which you have to write the code, in which you have to write the code, pseudocode. Okay. This is also externally accessed, and calculators are also not allowed in this paper too. So next one, let me introduce the book. Book is the recommended book for O level. I'm going to share it. Yes, this one is the book, recommended book for Cambridge IGCSE and O level. For both types of exams, IGCSE and O level both have the same syllabus and same paper pattern and same book. If you are appearing in the IGCSE, then same book is recommended by the Cambridge. If you are appearing in the O level, same book you will have to follow. Okay, this is the book written by David Watson and Henry Bailey. It's the second edition. First edition is also available in the market, but you have to buy the second edition, not the first. First edition is related to old syllabus. Okay, next, there are total 10 sections in the syllabus, and you have 10 chapters according to the syllabus. These are the 6 chapters, chapter 1 to 6. Which is the syllabus of paper 1. This is the theoretical paper, in theory fundamentals, in which first chapter is related to data representation. Then we have a data transmission, hardware related chapters, and softwares and internet and its uses.
and automated and immersive technology. There are total 6 chapters. Moostly ये जनरल नॉलेज है, मोस्टली बच्चों को कुछ नॉलेज होता है, इसमें नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वन, इजी है। सेक्शन 1 और पेपर 1 जो है इसमें, ठीक है। पेपर 2 consists of chapters 7 to 10, ठीक है। This is algorithms, programming and logics से related है। एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे आप। एल्गोरिथम डिजाइन मीन आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे यूजिंग स्टेप्स, ये आपकी इसमें स्किल होगी। कॉन्सेप्चुअल है सारा ये पेपर, थ्योरेटिकल नहीं है। पेपर 1 एक्चुअली थ्योरेटिकल है, जिसको आप याद कर सकते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस होगी। मीन आप कॉन्सेप्ट्स इसमें आपके होंगे, मैटर करेंगे आपके पेपर के लिए। इसमें डेफिनेशंस, डिस्क्रिप्शंस वगैरह नहीं होगी। अच्छा जी, प्रोग्रामिंग है नेक्स्ट चैप्टर हमारा, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स है। Then we have a database and the Boolean logic. There are 4 chapters in paper 2. 4 to 4 chapter conceptual and practice based and mostly, ठीक है। और इन्हीं में से आपका एक सिनेरियो क्वेश्चन होगा लास्ट, ठीक है, 75 मार्क्स का होगा। ओके, चलिए हम चैप्टर 1 को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। चैप्टर 1 में हम क्या स्टडी करेंगे? चैप्टर 1 इज एक्चुअली रिलेटेड टू नंबर सिस्टम्स। Data representation and related to numbers. How computer represents data in memory. This is related to chapter 1. We will study how data is represented. Various types of data are represented in computer memory and how computer represent it in memory. अच्छा, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कंप्यूटर एक्चुअली जितने भी कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स आपके जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं वो यूज करते हैं numbers to represent data. Share the slides. First chapter है information representation or data representation है। Then we will see how multimedia files like graphics and sound are represented in computer memory. नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, डाटा कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, कंप्रेशन कैसे होती है, डाटा को कंप्रेस कैसे करते हैं। देयर आर 3 मेजर टॉपिक्स हैं आपके चैप्टर में। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि आपका डाटा रिप्रेजेंटेशन में आप स्टडी क्या करेंगे। आपको डिफरेंट नंबर सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग होगी। वी विल हैव टू स्टडी 3 नंबर सिस्टम्स। इसमें हमारे पास आ जाता है बाइनरी नंबर्स, कैनरी नंबर्स को हम देखेंगे एंड हेक्साडेसिमल। 3 नंबर सिस्टम्स हैं, हम अपने सिलेबस में इसमें देखेंगे कि कैसे ये नंबर्स बाइनरी में रिप्रेजेंट होते हैं। मीन कंप्यूटर इनको रिप्रेजेंट कैसे करेगा, कैनरी, हेक्सा एंड बाइनरी। बाइनरी में एक्चुअली कंप्यूटर रिप्रेजेंट करता है, तो इसको हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। Then we will discuss ones complement and twos complement से related है। मीन नेगेटिव नंबर्स को भी कंप्यूटर स्टोर करता है, उसको प्रोसेस करता है, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी। फिर हम इसकी नंबर्स की कन्वर्जन्स को देखेंगे, हाउ वन नंबर सिस्टम इज कैन बी कन्वर्टेड टू अनदर नंबर सिस्टम। फाइनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है आपके सिलेबस में, फाइनली नंबर्स को कैसे ऐड करके। और इसके अलावा हम इसमें डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेमोरी को कैसे मेजर करते हैं, इनके कौन सी यूनिट्स हैं, उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है उसको हम देखेंगे। ओवरफ्लो कैसे होता है, मेमोरी एक्चुअली लिमिटेड होती है साइज में, तो आपका डाटा अगर मेमोरी स्क्रीन नहीं है से, सॉरी सर, जी यस रिपीटिंग, सर स्क्रीन नहीं है, स्क्रीन शो नहीं हो रही। Is it visible now? नो सर, No, sir. Still not visible? No. Check it.
जी सर, अब शो हो रही है। Yes. Okay, these are the contents of chapter number 1. मीन आपका section 1 6 chapters है. Chapter 1 है हमारा, उसमें different contents आपको यहाँ पे show हुए हो. Like इसमें हम study करेंगे नंबर की कन्वर्जन है, मोस्टली डाटा रिप्रेजेंटेशन है, तो वेरियस टाइप्स के डाटा उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अच्छा, इसमें अब हमारे पास नेक्स्ट डाटा की रिप्रेजेंटेशन और डिफरेंट टॉपिक्स जो थे इसमें, ये एक्चुअली आपको इसके कंटेंट्स बता रहा था. नंबर कन्वर्जन है, 3 टाइप्स के नंबर सिस्टम हम डिस्कस करेंगे, बाइनरी, टर्नरी, हेक्सा एंड हेक्साडेसिमल नंबर्स है और बीसीडीज है. फिर नंबर्स की कन्वर्जन्स है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स है, बाइनरी को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना है, ओवरफ्लो क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ मेमोरी जो है उसको कैसे मेजर करते हैं, मीन उसकी कैपेसिटी को कैसे मेजर करेंगे. इसके बाद हम देखेंगे इसमें डाटा को कंप्रेस कैसे करते हैं और उसके क्या एडवांटेजेस हैं, हमने डाटा को कंप्रेस क्यों करना है, और डिफरेंट कैरेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी. देन वी हैव नंबर सिस्टम्स को हम देख लेते हैं, डाटा को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है. डाटा हमारे पास एक्चुअली वी हैव 3 नंबर सिस्टम्स हैं. विजिबल है स्क्रीन, एक्चुअली मेरे पास इसका व्यू नहीं सर, सॉरी, इज इट विजिबल? जी अभी नहीं हो रही सर. अच्छा, नंबर सिस्टम्स को हम डिस्कस करेंगे. 3 नंबर सिस्टम्स हैं और कंप्यूटर कौन सा नंबर सिस्टम यूज करता है उसको देखते हैं, और वो कौन भी नंबर सिस्टम को यूज करता है बाइनरीज को हम चेक कर देते हैं. इसका सबसे पहला हमारा टॉपिक ये होता है कि कंप्यूटर, व्हाई कंप्यूटर यूज अ बाइनरी नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम 3 टाइप्स के डिस्कस करेंगे, बाइनरी, डेनरी एंड हेक्साडेसिमल. ठीक है, और बाइनरी नंबर सिस्टम्स में क्या होता है, कौन कौन से डिजिट्स हैं, देन डेनरी नंबर सिस्टम्स कौन से डिजिट्स हैं, हेक्सा में कौन से डिजिट्स हैं, इसको हम देख लेते हैं. अच्छा, इसमें हमारे पास बाइनरी नंबर्स हैं. कंप्यूटर एक्चुअली यूज करता है बाइनरी नंबर सिस्टम्स को. बाइनरी मीन 2, बाई 2 को कहते हैं बाइनरी मीन 2. 2 मीन आपके इसमें ओनली 2 डिजिट्स होते हैं. जो बाइनरी नंबर्स है उसमें ओनली 0 और 1 होते हैं, और कंप्यूटर ओनली यही नंबर अंडरस्टैंड करता है. मीन कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड 0 एंड 1, वो कोई और नंबर सिस्टम अंडरस्टैंड नहीं कर सकता. ह्यूमन एक्चुअली बाइनरी नंबर्स को यूज नहीं करते, डेनरी यूज करते हैं. मीन हमारी डेली की डीलिंग्स जो होती हैं, किसको क्वांटिटी बता रहे हैं या अमाउंट बता रहे हैं, तो वो जो फिगर या नंबर्स होते हैं वो हमारे डेनरी में होते हैं. कंप्यूटर में भी सेम इसी तरह हम जो एंटर करते हैं नंबर्स वगैरह कैलकुलेशंस के लिए, वो डेनरी में ही करते हैं, बट इनसाइड द कंप्यूटर मेमोरी वो डेनरी नंबर्स कन्वर्ट हो जाता है इनटू बाइनरी नंबर्स. अब ये ऐसा क्यों है कि कंप्यूटर क्यों बाइनरी नंबर्स यूज करता है, ये बाकी नंबर सिस्टम्स को अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर सकता. इसमें एक्चुअली 2 वैल्यूज हैं. कंप्यूटर का जो माइक्रो प्रोसेसर है, कंप्यूटर के जितने भी मेमोरीज होती हैं, एक्चुअली कंप्यूटर जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. इसने इलेक्ट्रिसिटी से चलना है. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं इनसाइड द कंप्यूटर. इनसाइड द कंप्यूटर ये जितने भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं, अगर आप कोई भी अपना घर के इलेक्ट्रिक डिवाइसेस देख लें, अप्लायंसेस देख लें जो इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होते हैं, उन पे कोई भी 2 स्टेट्स होती हैं. मीन या तो वो ऑन होते हैं या ऑफ होते हैं. ठीक है, मीन या तो कोई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट या डिवाइस जो है वो ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है. तो 2 ही स्टेट्स में ये डिवाइसेस हमारे पास होती हैं. इनकी जो स्टेट्स हैं वो 2 होती हैं. ठीक है, और किसी भी एक स्टेट में ये हो सकते हैं डिवाइसेस. सिमिलरली कंप्यूटर मेमोरी भी आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है.
तो वो कंपोनेंट जो है ये वो इलेक्ट्रिक जो उसके अंदर डिवाइसेस लगे हुए हैं वो भी आपके या तो ऑन हो सकते हैं या ऑफ हो सकते हैं। इन ये ऑन ऑफ को हम 0 1 कह देते हैं। 1 एक्चुअली ऑन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, 0 रिप्रेजेंट करता है इनटू ऑफ स्टेट को। ठीक है, पेपर के ऊपर हम 1 0 लिख देते हैं, लेकिन इंटरनली ये कंप्यूटर में ऑन ऑफ स्टेट्स होती है। मीन कंप्यूटर मेमोरी एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस होते हैं। एक्चुअली स्विच कैन आइदर बी ऑन कैन बी ऑन या ऑफ, दो ही स्टेट्स हो सकती हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये स्विचेस जितने भी हैं इनसाइड द मेमोरी ये ओनली ऑन और ऑफ को ही अंडरस्टैंड करेंगे, या फिर आप जो भी डाटा देंगे, फॉर एग्जांपल आप 5 एंटर करते हैं फ्रॉम कीबोर्ड, तो 5 एक्चुअली कन्वर्ट हो जाता है ऑन ऑफ की फॉर्म में। मीन उसका एक कॉम्बिनेशन बन जाता है स्विचेस का 0 1 की फॉर्म में। तो वो 0 1 ऑन ऑफ स्टेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट होगा और मेमोरी में सेव हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन की इसमें है। फर्स्ट टॉपिक ये हमारा पेपर में आ चुका है एग्जाम में 1 2 दफा कि व्हाई कंप्यूटर अंडरस्टैंड बाइनरी नंबर्स। बाइनरी मीन टू स्टेट्स एंड दैट। इसके रीजन यही है बिकॉज कंप्यूटर जो है it is an electronic device है, and electronic component can either be on or off हो सकते हैं। That's why computer only understand the binary number। अच्छा, तो फिर आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? मीन डाटा तो डिफरेंट टाइप्स का है। मीन कंप्यूटर में पिक्चर्स भी स्टोर है, इमेज की फॉर्म में भी डाटा स्टोर है। वो इमेज कैसे 0 1 बनेगा? मीन मेमोरी में तो 0 1 की फॉर्म में है, तो 0 1 इमेज को कैसे रिप्रेजेंट करेगा? साउंड आप जो है वो भी कंप्यूटर में सेव होती है, साउंड को आप कैसे 0 1 में कन्वर्ट करेंगे? देन नंबर्स हैं, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे ये, और इसके बाद अल्फाबेट्स हैं, इन जो आप मैसेज टाइप करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, वो भी एक्चुअली 0 1 में ही कन्वर्ट होता है। तो ये टोटल हमारे फर्स्ट चैप्टर का सिलेबस है कि आपका डाटा कैसे रिप्रेजेंट होगा। डाटा की डिफरेंट टाइप्स हैं, नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट होंगे बाइनरी में, डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स। देन वी हैव टेक्स्ट, मीन अल्फाबेट्स को हमने बाइनरी में 0 1 में कन्वर्ट करना है, वो कैसे होगा। देन इमेज और साउंड, ये 4 टाइप्स का डाटा हम डिस्कस करेंगे कि वो कंप्यूटर की मेमोरी में कैसे सेव होगा इन द फॉर्म ऑफ 0 1। 0 1 इसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज, कोई दूसरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। ये सारा काम कन्वर्जन्स करनी पड़ती है। मीन आपने कोई भी चीज टाइप कर दी, वो कन्वर्ट होती है इनटू बाइनरी फॉर्म एंड देन goes inside the computer memory और वहां सेव हो जाती है। और जब रीड करना हो तो देन अगेन ये कन्वर्जन प्रोसेस होता है, स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है आपको हाई लेवल की फॉर्म में। अदरवाइज इनसाइड द कंप्यूटर मेमोरी, जितनी भी मेमोरीज हैं वो स्विचेस होते हैं। स्विचेस मीन ऑन ऑफ की फॉर्म में। लाइक जैसे आपके घरों में स्विचिंग पैनल लगा होता है, डोर के साथ आपने ऑन ऑफ करने होते हैं, कोई चीज लाइट ऑन ऑफ करनी है या फैन ऑन, तो आप स्विचेस को ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। तो सिमिलर पैटर्न के स्विचेस जो होते हैं वो आपके कंप्यूटर मेमोरी में होते हैं, वो भी ऑन ऑफ की फॉर्म में डाटा को सेव कर लो। अच्छा, इसके बाद हम इसकी थोड़ी सी देख लेते हैं कन्वर्जन से। नंबर सिस्टम ये बता दिए, बाइनरी नंबर्स आर बेस 2। अच्छा, इनकी बेसिस का पता हो। बेस 2 का मतलब है देयर आर ओनली 2 डिजिट्स इन द बाइनरी नंबर, दैट्स व्हाई इट्स बेस इज 2। बेस को हम यूज करेंगे कन्वर्जन प्रोसेस में। ठीक है, तो बेस एक्चुअली रिप्रेजेंट करती है किसी भी नंबर में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। बाइनरी में ओनली 2 डिजिट्स एंड दैट्स व्हाई इट्स बेस इज 2। अच्छा, इसमें ओनली 2 डिजिट्स होंगे 0 एंड 1 की फॉर्म में। ठीक है, अच्छा, डेनरी नंबर नेक्स्ट नंबर सिस्टम है हमारा। डेनरी हम डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। इसका नंबर सिस्टम में टोटल 10 डिजिट्स हैं फ्रॉम 0 to 9। 0 से लेकर 9 तक ये डिजिट्स आपके डेनरी नंबर से। ठीक है, तो ये डेनरी नंबर का यूज क्या है? ये यूजर यूज करता है, ह्यूमन यूज करते हैं। ठीक है, तीन आपस में डेली कम्युनिकेशन जो होती है हमारी वो डेनरी नंबर्स में ही होती है। लेकिन कंप्यूटर के साथ भी हम कम्युनिकेट करेंगे ये नंबर्स, लेकिन कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा तो कन्वर्ट करेंगे। तो वो कन्वर्जन प्रोसेस हम देखेंगे कि कैसे ये कन्वर्जन होंगे। Next one is a hexadecimal numbers. Hexadecimal, hexa means 6, deci means 10. So there are total 6 plus 10. Total हमारे पास इसमें 16 digits होते हैं। एक्चुअली ये 16 डिजिट्स हम अपने डेली लाइफ में तो यूज नहीं करते, लेकिन ये कंप्यूटर में इसका यूज है, वो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसकी बेस वैल्यू 16 है।
16 शो करते हैं 16 डिजिट्स। अब कौन कौन से डिजिट्स हैं इसमें स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद A B C D E and F। A B C are not alphabets, actually these are the hexadecimal digits हैं। तो A B C F तक ये डिजिट्स हैं। A B C एक्चुअली हेक्साडेसिमल डिजिट्स को हम इसको कंसीडर करते हैं। टोटल 16 डिजिट्स हैं 0 से लेकर 15 तक। 9 एक्चुअली 10 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, हम उसको 10 नहीं लिखते। हेक्साडेसिमल में दैट इज द A, कैपिटल A में हम शो करते हैं। देन B है 11, C 12, D 13, E 14 एंड F 15। तो 0 to 15। अच्छा, अब इसका यूज क्या है? हम क्योंकि ह्यूमन तो यूज नहीं करते इसको, तो कंप्यूटर यूज करेगा इसको। कंप्यूटर इसको किस पर्पस के लिए यूज करेगा? इंटरनली तो डेटा आपका बाइनरी में जा रहा है, ठीक है, वो तो बाइनरी में रिप्रेजेंट हो रहा है, उसमें हेक्साडेसिमल डिजिट स्टोर नहीं हो सकता। एक्चुअली ये कम्युनिकेशन के लिए है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए। कंप्यूटर जब भी आपके साथ कोई चीज कम्युनिकेट करेगा, कोई मेमोरी लोकेशन होगी या मेमोरी की वैल्यू होगी, वो बाइनरी में कम्युनिकेट नहीं करता। कंप्यूटर अगर बाइनरी में कम्युनिकेट आपसे करे तो वो बहुत लेंथी नंबर बन जाता है, मीन लॉन्ग चेन ऑफ जीरोस एंड वंस बन जाएगी, ठीक है। तो इतना लेंथी नंबर्स को कंप्यूटर क्या करता है, कम्युनिकेट करने के लिए उसको रिड्यूस्ड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में आपको शो कर देता है। और उसके लिए जो नंबर सिस्टम यूज करता है वो हेक्साडेसिमल नंबर्स यूज कर देता है। हेक्साडेसिमल नंबर्स में बाइनरी की जो रिप्रेजेंटेशन है वो 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाती है, मीन डिवाइडेड बाय 4 कर दें, जितने बाइनरी के डिजिट्स हैं उसको 4 टाइम लेस कर दें तो वो हेक्साडेसिमल, मीन आपकी वो वैल्यू बहुत कम हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। तो शॉर्टर नोटेशंस के लिए, बाइनरी की शॉर्टर नोटेशंस के लिए हेक्सा को यूज किया जाता है। मेजर 5 यूजेस हैं हेक्सा के। ये हम अपने कैलकुलेशंस में यूज नहीं करते एक्चुअली, इसको हम रिप्रेजेंटेशन के लिए ही यूज करेंगे। मेमोरी एड्रेसिंग है, बहुत लेंथी नंबर्स होते हैं, लाइक आजकल के जो कंप्यूटर्स हैं वो 64 बिट उसका साइज है एक इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करने का। मीन कोई भी नंबर रिप्रेजेंट होता है उसमें तो 64 बिट्स में रिप्रेजेंट होता है। तो 64 बिट्स को आप रिड्यूस करके अगर उसको डिस्प्ले करना हो, शो करना हो, लिखना हो, याद करना हो, तो वो उसके लिए 64 बिट्स को रिमेम्बर करना डिफिकल्ट है, इसको प्रोग्रामिंग में यूज करना बहुत डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। और तो उसको अगर रिड्यूस करके लिख दिया जाए हेक्सा में तो वो इजी हो जाता है ह्यूमंस के लिए उसको यूज करना। डिफरेंट कलर कोड्स हेक्सा में यूज होते हैं। कलर कोडिंग आपकी जब वेब पेज डिजाइन करते हैं उसमें डिफरेंट कलर्स को यूज करते हैं, तो उनकी जो कोडिंग है, कौन सा कलर, उसका नंबर क्या है, वो हेक्सा में होता है। डाटा की रिप्रेजेंटेशन है, असेंबली लैंग्वेज है, इसको हम देखेंगे। असेंबली लैंग्वेज में भी आपकी डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, वो भी आपकी हेक्सा में रिप्रेजेंट होंगे। एरर डिटेक्शन और उसकी रिप्रेजेंटेशन है। कंप्यूटर में समटाइम्स वेरियस एरर्स आ जाते हैं, कंप्यूटर जब भी उसका एरर कोड आपसे शेयर करेगा वो हेक्सा में शेयर करेगा। समटाइम्स आपने एक्सपीरियंस किया होगा, कोई आप एप्लीकेशन कोई गेम स्टार्ट करते हैं, एक एरर आ जाता है, ऊपर मैसेज आ जाता है, उसमें आप देखिएगा कहीं एरर कोड लिखा हो तो वो हेक्सा में शेयर करती है, कम्युनिकेट होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारी नंबर को कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी नंबर्स, हेक्साडेसिमल्स एंड बाइनरी नंबर्स। कोई भी नंबर सिस्टम जब भी आप उसको स्टडी करते हैं तो उसको सबसे पहले उसकी प्लेस वैल्यूज को बताया जाता है। छोटे बच्चे जो ग्रेड 1 के बच्चे जब उनको ये नंबर्स करवाए जाते हैं तो उनको बताया जाता है कि ये एक नंबर है, इसका जो राइट मोस्ट डिजिट है उसको हम यूनिट डिजिट कहते हैं। देन राइट के साथ जो लेफ्ट साइड के डिजिट होगा उसको 10th है उसकी पोजीशन वैल्यू, देन 100 पोजीशन वैल्यू है, देन 1000 है, एंड देन सो ऑन 10,000, 100,000 एंड सो ऑन की प्लेस वैल्यूज हैं, ये इनको पोजीशन वैल्यूज कहते हैं। ये नहीं बताया जाता कि क्यों ऐसे है। मीन फर्स्ट जो डिजिट होगा, जो राइट मोस्ट डिजिट होता है जिसको लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहते हैं, वो आपका यूनिट डिजिट है, ठीक है। उसके साथ वाला 10th क्यों है? एक्चुअली हम जब बाइनरी नंबर्स की बात करते हैं तो आपके पास बाइनरी नंबर में जो बेस वैल्यू है वो 10 है, तो इसमें
प्लेस वैल्यूज और पोजीशन वैल्यूज जो होती हैं वो 10 के मल्टीपल से होती हैं, मीन वो 10 के मल्टीपल से इंक्रीज करती हैं या डिक्रीज चेंज होती है। मीन जब आप लेफ्ट साइड पे मूव करते जाएंगे तो प्लेस वैल्यूज 10 से मल्टीप्लाई होकर आपका वो बनती जाएगी। मीन फर्स्ट राइट मोस्ट इज अ यूनिट डिजिट 8, देन आप 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नेक्स्ट प्लेस वैल्यू आ जाएगी 10th आ जाएगी। 10th को 10 से, चलिए मैं इसको थोड़ा सा रिटर्न फॉर्म में आपको करवाता हूँ, समझा देता हूँ नंबर कन्वर्जन। ये फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, उसके बाद कहीं भी 6 चैप्टर जितने भी है उसमें कहीं भी मैथ्स इन्वॉल्व नहीं होगा। इसमें कैलकुलेशंस होंगी फर्स्ट चैप्टर में, हम उसको कैलकुलेशंस, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स वगैरह होंगी, लेकिन आपने कैलकुलेटर यूज नहीं करना, वो सिंपल कैलकुलेशंस होती हैं, ज्यादा लेंथी या कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं होंगे कि आप उसको सॉल्व ना कर सकें पेपर पे। अच्छा, अच्छा नंबर्स में हमारे पास लाइक कोई भी हम नंबर सिस्टम ले लेते हैं जो हम यूज करते हैं। 999 एक नंबर है फॉर एग्जांपल, तो इसमें ये तीनों नाइन्स हैं लेकिन तीनों की मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, ये तीनों की जो सिग्निफिकेंस है वो डिफरेंट है। ये भी 9 है, ये भी 9 है, दिस वन इज आल्सो 9, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी प्लेस को चेंज करते जाएंगे तो अच्छा, फर्स्ट वन जो 9 है ये एक्चुअली इसकी प्लेस वैल्यू 1 है, मीन यूनिट है, यूनिट मीन इट इज अ 9, ठीक है। देन 1 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें बिकॉज इट्स अ डेनरी नंबर, तो ये नेक्स्ट प्लेस वैल्यू आ जाएगी 10। 10 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये 90 बन जाएगा। एक्चुअली ये सेकंड जो 9 है ये 9 नहीं है, ये 90 है। देन 10 को अगेन 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 100 आ जाएगा। 100 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये 900 बन जाएगा। एक्चुअली जो थर्ड 9 है ये 9 नहीं है, 900 है। सेकंड 9 इज 90, फर्स्ट 9 वो 9 है आपका। इन तीनों को जब आप ऐड कर दे तो आपके पास 999 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्लेस वैल्यूज के रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा था कि प्लेस वैल्यूज फर्स्ट वन किसी भी नंबर सिस्टम की जो फर्स्ट प्लेस वैल्यू होगी वो यूनिट होगी इन एवरी नंबर सिस्टम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस वैल्यू ये डिपेंड करती है नंबर सिस्टम कौन सा है। इफ द नंबर सिस्टम इज अ डेनरी तो देन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को। अगर वो बाइनरी नंबर सिस्टम है तो उसकी प्लेस वैल्यू बनेगी 2, वो 2 है उसकी प्लेस वैल्यू, तो हमारा नेक्स्ट 2 हो जाएगा। अगर वो हेक्सा है तो वो 16 से मल्टीप्लाई होगा 1, तो फिर 16 से मल्टीप्लाई होता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर कोई भी ले लेते हैं, 2AF है फॉर एग्जांपल, ये एक हेक्सा वैल्यू है, A से लेकर F तक ये नंबर C होते हैं। इसकी प्लेस वैल्यू 1 होगी, तो नेक्स्ट प्लेस वैल्यू ये डिपेंड करेगी इसकी बेस वैल्यू। बेस एक्चुअली हेक्सा की है 16, तो इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू और पोजीशन वैल्यू इज 16। इससे नेक्स्ट जो लेफ्ट साइड पे डिजिट है वो अगेन 16 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नेक्स्ट प्लेस वैल्यू आ जाएगी 256, ठीक है। सिमिलरली बाइनरी नंबर सिस्टम्स हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है कि हमारे पास 2 ही डिजिट्स होते हैं, लाइक 1 0 1 1 0, कोई भी एक हम नंबर ले लेते हैं। दिस वन इज अ बाइनरी नंबर। अब इनकी प्लेस वैल्यूज कैसे होंगी? फर्स्ट वन इज अ यूनिट मीन 1, सेकंड वन, अब सेकंड प्लेस वैल्यू आपकी, क्योंकि ये बाइनरी है, बाइनरी के लिए जो बेस है उसकी 2 है, तो हम फर्स्ट यूनिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट प्लेस वैल्यू 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, इट इज अ 4, देन वी हैव नेक्स्ट प्लेस वैल्यू 8, देन 16, ये 2 का मल्टीपल हो, देन 32, देन 64 एंड सो ऑन। तो इस तरह हमारी ये प्लेस वैल्यू बाइनरीज की बन जाएगी। तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि ये कन्वर्जन्स में यूज होंगी, इस वजह से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डेनरी की प्लेस वैल्यू फर्स्ट यूनिट है, देन 10 100 1000, वो 10 का मल्टीपल होती है प्लेस वैल्यूज। हेक्साडेसिमल की जो प्लेस वैल्यूज होती हैं वो 16 के मल्टीपल से वो प्लेस वैल्यूज होती हैं।
मीन फर्स्ट वन इज अ 1 है तो नेक्स्ट 16 होगा, फिर 256 होगा एंड सो ऑन। बाइनरी बेस 2 होती है, बेस 2 में हमारे पास जो पोजिशनिंग होती है, प्लेस वैल्यूज होती है, वो 1 2 4 8 16 32 64 एंड सो ऑन, इस तरह ये हमारी प्लेस वैल्यूज बनती जाएंगी। अच्छा चलिए अब हम इसकी कन्वर्जेंस करते हैं। फर्स्ट हम किसी भी बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करते हैं इनटू टेनरी, बाइनरी को टेनरी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये कैसे होगा, मैं थोड़ा सा इसको स्लाइड्स पे भी देख लेते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकली है जरा, मैं इस वजह से इसको रिटर्न ही आपको करवा दें। अच्छा बाइनरी नंबर कोई भी लेते हैं आप, ठीक है, किसी भी नंबर सिस्टम को उसके प्लेस वैल्यूज उसके ऊपर लिखें, then multiply the place values with the digits and then add them, you will get a ternary value, ठीक है। कोई नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक नंबर है एंड इट इज अ बाइनरी नंबर एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ टेनरी वैल्यू। टेनरी मीन डेसिमल, जो हम ह्यूमन यूज करते हैं, ये एक्चुअली कंप्यूटर में स्टोर है। अब ह्यूमन के साथ इसको कम्युनिकेट करना है, कंप्यूटर इसको कन्वर्ट कर देगी इनटू अ टेनरी फॉर्म। तो वो टेनरी फॉर्म क्या होगी इसकी, टेनरी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए आपने इसकी प्लेस वैल्यू इसके ऊपर लिखे 1, इसकी प्लेस वैल्यू 2, देन वी हैव 4 8 16, देन वी हैव 32, ठीक है। अब आपने ये करना है, प्लेस वैल्यू एंड डिजिट्स ये मल्टीप्लाई करने, मीन 32 into 1 32 first, then 16 into 1 is 16, then plus 8 into 1 8, then we have 4 into 0 is 0, then 2 multiplied by 0 is also 0, then 1 into 1 is 1. इसको आप प्लस कर दें, you will get a 10 number 32 and 16 48 56 57, you will get 57, so it is equal to 57. तो 111 is equal to 57 in टेनरी वैल्यू। तो इसको आप इसकी बेस वैल्यू अगर आपने लिखनी है तो यहाँ पर आप छोटा सा 10 लिख सकते हैं कि इट इज अ टेनरी नंबर, ठीक है। ना भी लिखे इट इज अंडरस्टूड होता है क्वेश्चन में कि वो टेनरी नंबर है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर डिस्क्राइब किया होता है कि इट इज अ कि आपने कन्वर्ट करें बाइनरी टू टेनरी, ठीक है। तो इससे आप कोई भी बाइनरी नंबर इनटू टेनरी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्चुअली आपको जो बाइनरी नंबर्स आएंगे वो 8 बिट्स में आएंगे, 8 बिट्स नंबर होंगे बाइनरी में, 8 डिजिट्स तक के नंबर, 8 to 12 डिजिट्स तक बाइनरी नंबर हो सकते हैं, इससे ग्रेटर नंबर आपके सिलेबस में नहीं है। 8 डिजिट्स एक्चुअली कंप्यूटर की जो मेमोरी साइज होता है उसमें फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, मीन या तो कंप्यूटर ये भी 2 के मल्टीपल में होते हैं, या तो कंप्यूटर की मेमोरी में जो रजिस्टर साइज है, मेमोरी साइज होगा वो 8 बिट का एक नंबर होगा, या 16 बिट होगा, या 32 बिट होगा, या 64 बिट होगा, इन बिटवीन नहीं होते ये, ठीक है। मीन या तो 2 बिट 4 बिट 8 बिट 16 बिट 32 बिट और 64 बिट, ठीक है। 6 बिट मेमोरी साइज नहीं होता, ये रजिस्टर साइज आप उसको नहीं कहते, ठीक है। तो 8 बिट हो सकता है, 10 बिट्स नहीं होते कंप्यूटर मेमोरी साइज जो है उसका, मीन एक रजिस्टर एक जो वैल्यू है उसके अंदर जो रिप्रेजेंट होगी या तो वो 8 बिट्स में, मोस्टली अब आपकी 8 बिट्स रजिस्टर को ही हम यूज करेंगे, 8 बिट्स डिजिट्स को ही यूज करेंगे। अच्छा इसको आप कन्वर्ट कर लेते हैं, वेरी सिंपल। इसकी प्लेस वैल्यूज लिखें इनके ऊपर, फर्स्ट प्लेस वैल्यू बाइनरी नंबर की 1 होगी, ठीक है। देन वी हैव, इसके बाद आ जाएगी 2, then 4 8 16 32 64 and 128, ये इनकी प्लेस वैल्यूज है। नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप था कि यू हैव टू मल्टीप्लाई प्लेस वैल्यू विद द डिजिट, प्लेस वैल्यू को डिजिट से मल्टीप्लाई करें, मीन 128 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 64 को 1 से करें, इसी तरह जितनी भी प्लेस वैल्यूज हैं उनको उसके डिजिट से मल्टीप्लाई करते जाएं और देन ऐड कर दें। तो 128 प्लस 64 प्लस 32 इंटू 0 0 हो जाएगा,
16 multiplied by 0 भी 0 हो जाएगा. Then we have 8 into 1 is 8. 4 into 1 4. Then we have 0 plus 0. अब इन वैल्यूज को ऐड कर दें. जो 0 डिजिट्स हो उनको आप ना भी मल्टीप्लाई करें, इट्स ओके, उसको इग्नोर कर दें. 128 plus 64 ये आ जाएगा आपका 192. कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं होगा, ठीक है. 192 into 8 200 204. तो ये आपका आंसर आ जाएगा 204. ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, विच इज इक्वल टू 104. ये हमारा हो गया है बाइनरी टू डेनरी कन्वर्जन. नाउ इसको अपोजिट करते हैं. इन डेनरी टू बाइनरी मीन आप कीबोर्ड से नंबर्स जो भी प्रेस करते हैं, इन कीबोर्ड्स के ऊपर कीज जो है वो 0 to 9 होती है, जो डिजिट्स होते हैं. आप किसी भी एक नंबर को प्रेस करते हैं तो वो आपका बाइनरी में कन्वर्ट होता है. अब डेनरी नंबर बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होता है इसको आप देख लेते हैं. इसके दो मेथड्स हैं. एक्चुअली मेथड आपके पेपर में मेंशन नहीं होता कि आपने किस मेथड से करना है. जो मेथड आपको इजी लगे वो आप मेथड अडॉप्ट करें और उसी से आप कन्वर्जन्स करें. चलिए मैं इस अब डेनरी को बाइनरी कन्वर्ट कर लेता हूँ. डेनरी टू बाइनरी. डेनरी की बेस वैल्यू 10 है, बाइनरी की बेस वैल्यू 2 है, ये याद रखिएगा. अच्छा, हम कोई भी बाइनरी नंबर ले रहे हैं. इसका जो फर्स्ट मेथड है वो है डिवीजन एंड रिमाइंडर मेथड. स्क्रीन विजिबल है तो इश्यू तो नहीं है, क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा आप जरा से क्लियर. अच्छा, डिवीजन एंड रिमाइंडर मेथड, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि इसमें आप कैसे कोई नंबर को कन्वर्ट करेंगे. अच्छा, मैं कोई भी नंबर ले लेते हैं. लाइक अभी हमने कुछ कन्वर्जन्स किए, उसी को ही हम कर लेते हैं ताकि हमारा आंसर वेरीफाई हो जाए. लाइक 57 था, 57 को आपने बाइनरी में कन्वर्ट कर. ओके, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 2 पे. लाइक 57 जैसे आप एलसीएम लेते हैं वैसे हम इसको 57 को हम डिवाइड करेंगे 2 से. इन डिवीजन सिर्फ 2 से ही होगी. डेनरी को 2 से हम डिवाइड करेंगे डेनरी नंबर को, और इसके साथ इसका रिमाइंडर मेंशन कर देंगे. अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो 0 रिमाइंडर, अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर 1 होगा. 1 से ज्यादा रिमाइंडर आ ही नहीं सकता है, ठीक है. हम इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे. इसमें आ जाएगा 2 2s are 4 और 2 8s are 16 एंड रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ठीक है. अगर आपको ऐसे डिफिकल्टी हो रही है, बच्चों को स्टार्ट में होता है कि वो कैसे आपने किया, ये 2 से डिवाइड करें. 2 2s are जो बच्चों वाली डिवीजन है वो करें आप. 17 आ गया इसके साथ, 8s are 16 और इसका रिमाइंडर 1 आ गया. तो आपने इसका ये रिमाइंडर और ये क्वोशंट ये आपने लिख देने 28 और 1. देन अगेन इसको 2 से डिवाइड करें. आपने इसको डिवाइड करते जाना है until you get जो क्वोशंट है वो आपका 2 से लेस हो जाए. अच्छा, 2 से डिवाइड करें अगेन. 2 1s are 2, 4s are 18, sorry 4s are 8 and remainder is now 0. अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा ये. 2 7s are 14, remainder is again 0. 2 3s are 6 and remainder is now 1. अच्छा, इसके बाद अगेन 2 से डिवाइड करें. 2 1s are 2 and remainder is 1. फर्दर आपके पास डिवीजन पॉसिबल नहीं है, ठीक है. तो ये आपकी डिवीजन हो गई. अच्छा, अब आपने जितने भी रिमाइंडर्स आए उनको लिखना है, ठीक है. तो आपने लिखने का मेथड ये है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लिखेंगे आप, बॉटम टू टॉप.
भी इस तरह आपने ये रिमाइंडर्स लिख देने। फर्स्ट जो लेफ्ट मोस्ट होगा ये 1, ये वाला 1 जो है आपने लिखा, इसके साथ फिर 1 है, इसके साथ 1 लिख दें, देन अगेन 1, ये 1 है, फिर ऊपर को जाए 0 0 एंड 1। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो ये 57 जो है ये आपका बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। 57 जो है ये बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमने 204 मैं इसको भी कन्वर्ट कर सैंपल आपको दे देता हूँ। डिवीजन मेथड कर लेते थे, दूसरा मेथड आपको सिखा देता हूँ, वो सब्ट्रैक्शन मेथड है। द नंबर इज 204 एंड इसको अब आपने कन्वर्ट करना है इनटू बाइनरी। तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको। 2 10s are 20, 2 2s are 4, remainder is 0. Again 2, 2 5s are 10, and 2 1s are 2, remainder again 0. Then 50 again, 2 2s are 4, 2 5s are 10. और 11 था, इसमें से remainder बन जाएगा 1. Again 2, 12s are 24, remainder is 0. Is it? रिमाइंडर 0 आएगा। सारे सो रहे हैं। 25 को 2 पे डिवाइड करें, यू विल गेट 12 एंड रिमाइंडर इज 0। नहीं बेटा, कैसे 0 आएगा? हाँ जी 1 आएगा। 1 25 को 2 पे डिवाइड करें, ओके अगेन 2 6 are 12, रिमाइंडर इज 0। इसी तरह फिर आपका 2 3s are 6, रिमाइंडर अगेन 0, 1s are 2, रिमाइंडर इज 1। फर्दर आपके पास पॉसिबल नहीं है डिवीजन, तो आपने यही नंबर बॉटम टू टॉप 1 से शुरू होगा ना सर? यस, ये हम 1 से शुरू करेंगे ना काउंट करना। हाँ यस, यहाँ से 1 1 0 0 1 1 फिर 0 0 फिर 1 फिर 0 जी फिर 0 तो ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपका 204। सेकंड मेथड आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको हम वो दूसरा करेंगे ना, सेकंड वाला 1 2 4 8 जी 1 2 4 8 के थ्रू 4 8 1 जी 32 वो ज्यादा इजी है। चलें, वो आप उसको यूज कर लें। आपको पेपर पे बाउंड नहीं करेंगे कि आपने कौन से मेथड से कन्वर्ट किया है। ठीक है, समटाइम्स वो लिख देते हैं शो योर वर्किंग, कि आप कन्वर्ट करें लेकिन अपनी वर्किंग को जरूर शो करना है। ये जी वो नहीं वर्किंग का लिखते हैं, बट ये नहीं कहते कि मेथड यूज करना है। मतलब वो मेथड आपने शो करना होता है जी जिस कोई मेथड दिक्कत से नहीं। करें। ठीक है, आप उसको सब्ट्रैक्शन मेथड से कर रहे हैं या डिवीजन मेथड से कर रहे हैं, तो आप उसका मेथड अपने वो रफ वर्क पे या वो उन्होंने वो स्पेस दी होती है वहां पर वो मेथड शो कर देंगे। तो उसके भी मार्क्स होते हैं। आंसर के मार्क्स हैं तो उसकी वर्किंग के भी मार्क्स होंगे कि आपने कैसे इसको वर्कआउट किया है, क्वेश्चन का आंसर कैसे है। अच्छा, सेकंड मेथड देख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन मेथड। लाइक 204 ही था, इसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू बाइनरी। ठीक है, आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी के आपने पोजीशनिंग लिखना शुरू कर देनी। कब तक लिखनी है? जब तक ये 204 से ग्रेटर नहीं हो जाता। फर्स्ट पोजीशन होती है 1, देन 2 4 8 फिर 16 फिर 32 64 128 के बाद 256 आ जाएगा जो कि ग्रेटर है 204 से। वो हम नहीं लिखेंगे। मेन जब उससे ग्रेटर हो जाए वो हम वहाँ पे आप उसको छोड़ देंगे। तो इसकी पोजीशनिंग आपने बाइनरी की लिख ली अप टू 128। अब 204 में से आपने देखना है इसमें से ग्रेटेस्ट पोजीशन वैल्यू कौन सी सब्ट्रैक्ट हो सकती है। मीन सबसे बड़ा नंबर इनमें से, ये जो लिखे इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा सब्ट्रैक्ट हो सकता है? 128। 128 जो सब्ट्रैक्ट हो सकता है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें और 128 के नीचे 1 कर दें, तो बाकी जो रिमेनिंग नंबर बनेगा वो आप कैलकुलेट कर लें। 128 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ पर 9 में से 2 7 76 बच गया। अब ये जो 76 है ये रिमेनिंग वैल्यू आप चेक करें, इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये
64 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 76 में से 64 सब्ट्रैक्ट करें, बाकी रिमेनिंग वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट कर लें। 2 और 1 12 आ गई है, ठीक है। अब 12 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो सकता है 8 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास आ जाएगा 4। अब 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, बाकी बच गया 0। अब फर्दर सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जो सब्ट्रैक्ट हुए उनको आपने 1 कर दिया, जो सब्ट्रैक्ट नहीं हुए वो आप 0 कर देंगे। ये आपका रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। मीन 204 इज इक्वल टू 11 00 10 11 एंड 00। तो ये आपका रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। तो इस तरह भी आप कन्वर्जन कर सकते हैं। डिवीजन से करना चाहते हैं, डिवीजन से कर लें, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट जो हमारा टॉपिक था, इससे रिलेटेड हमारी एक्टिविटीज हैं, कुछ होमवर्क्स हैं, कुछ वो आप बुक से मैं आपको थोड़ा सा शो कर देता हूँ, आप उसको सॉल्व करें, कुछ प्रैक्टिस करें इसकी। तो नंबर सिस्टम्स, इसमें भी आप जी सर ये जो आपने ऊपर लिखा है इसको क्या कहते हैं? क्या, कौन सा? सॉरी 1 2 4 दोबारा आप उसको ओपन कर देते। 1 to 4 8 वाला। ये इसको प्लेस वैल्यू और पोजीशन वैल्यू कहते हैं जी, ठीक है। अच्छा मैं आपको अच्छा ये कन्वर्जन मेथड बुक में भी आपके इसी तरह ये देख लें, इनमें प्लेस वैल्यूज पोजीशन वैल्यूज उन्होंने बताई हुई कैसे नंबर करना है। 1.1 है, ये प्रैक्टिस के लिए आप इसको कर सकते हैं। ये बाइनरी से डेनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। बाइनरी से डेनरी में कन्वर्ट करने के लिए आप प्लेस वैल्यूज जैसे 1 2, जैसे ये लिखा 1 2 4 8 16 32 64, ये बाइनरी नंबर के ऊपर लिखें, आपस में मल्टीप्लाई कर दें नंबर्स और प्लेस वैल्यू और डिजिट्स को ऐड कर दें, तो यू विल गेट अ डेनरी नंबर। तो इजी है ये, तो मुश्किल नहीं है, ठीक है। फिर इसी तरह आपकी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेनरी टू बाइनरी। डेनरी टू बाइनरी में भी इन्होंने ये डिवीजन मेथड शो किया हुआ है और साथ रिमाइंडर बताए हुए हैं कि आपने 142 है, 2 पे डिवाइड करेंगे 71 और रिमाइंडर 0। देन अगेन 71 को आपने 2 पे डिवाइड करना है और आपके पास आ जाएगा 35 रिमाइंडर। ये रिमाइंडर आपने नोट कर लेंगे और इन्हीं रिमाइंडर्स को आपने लिख लेना है, ठीक है। बॉटम टू टॉप आपने लिखना होगा और यहाँ पर लेफ्ट टू राइट। तो ये आपका डिवीजन मेथड बुक में एक्सप्लेन किया, यहाँ से आप इसको स्टडी कर लें। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हैं इन्होंने मेंशन की हुई, ठीक है। ये भी आपका डिवीजन मेथड से इन्होंने कन्वर्ट किया हुआ है। मेथड 1 और सेकंड मेथड, ये दो मेथड्स हैं, दोनों मेथड्स उन्होंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। सब्ट्रैक्शन मेथड से भी आप कर सकते हैं, दूसरा मेथड डिवीजन रिमाइंडर मेथड से भी आप उसको नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपकी एक्टिविटीज हैं, एक्टिविटीज आपकी प्रैक्टिस के लिए कि ये चीजें अब आप इनमें से इनको कन्वर्ट करें इनटू बाइनरी फॉर्म। नेक्स्ट हमारा हेक्साडेसिमल डिजिट्स स्टार्ट हो जाता है, उसके साथ हम इसकी कन्वर्जन देखेंगे। बाइनरी से हेक्सा में कैसे कन्वर्ट होगा और हेक्साडेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट होगा, क्योंकि कंप्यूटर क्या करता है कि जितने भी बाइनरी वैल्यूज प्रोड्यूस होती है इनसाइड द कंप्यूटर, उनको जब कम्युनिकेट करता है वो हेक्सा में कम्युनिकेट करता है, ठीक है। वो वैल्यूज जो कंप्यूटर जनरेट कर रहा है, ये हमारे लिए इजी हो जाता है उसको अंडरस्टैंड करना। हेक्साडेसिमल नंबर रिड्यूस हो जाती है रिप्रेजेंटेशन बाइनरी की, तो हेक्सा में इसकी कन्वर्जन देखेंगे। हेक्सा में सबसे पहले तो आप ये देखिएगा 16 डिजिट है, बेस वैल्यू 16 है। प्लेस पोजीशनिंग जो होगी वो पोजीशन वैल्यूज जो है वो उनकी 1 फर्स्ट यूनिट है, देन 16, देन 256 एंड देन 16 से मल्टीप्लाई करते जाए तो इनकी प्लेस वैल्यूज आ जाए, ठीक है। तो उसके साथ हम इसको चलिए अब नेक्स्ट लेसन इंशाल्लाह कल होता है, तो इससे रिलेटेड ये काम आज करें। कल मैं देख लेता हूँ आपको एक्टिविटी 1.1 बुक शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, ये सॉफ्ट फॉर्म में आप इसको डाउनलोड कर लें, मार्केट में अवेलेबल है, वहां से परचेज कर लें, इसको प्रिंट करके रख लें और ऑनलाइन ही पढ़ना है तो ऑनलाइन ही आप अपने फोन में स्टोर कर लें। तो ये एक्टिविटी सॉल्व करें और एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 में से आपने कोई से 5 क्वेश्चन कर लें, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको क्लियर ना हो कल इसको रिवाइज कर लेंगे और नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ हम चले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम देखेंगे अल्फाबेट्स कैसे बाइनरी में कन्वर्ट
आप अपना नेम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अली है, अली को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? या आप कोई भी मैसेज लिखते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज लिखते हैं, वो एक्चुअली मेमोरी में जब स्टोर होना है तो वो बाइनरी में जाएगा, तो कैसे उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी? और इनकी फिर एडिशन सब्ट्रैक्शंस वगैरह को भी हम चेक करते हैं कि कैसे ये बाइनरी नंबर्स ऐड हो। ठीक है, एनी क्वेश्चन? जी बच्चों, तो चीज रिपीट करके मुझे बताएं, आज हमने क्या स्टडी किया है, कैसे आप बाइनरी नंबर कंप्यूटर को यूज करते हैं? बिकॉज कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इट हैज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स and any electronic component can either be on and off. That's why computer use the binary number. Very simple answer है, ये exam में आया हुआ है। Then we have a 3 number systems जो use होते हैं major in computer. Binary number system consists of 0 or 1 or on and off, इसको हम कह देते हैं। And then we have a Delhi number system 0 to 9, इसमें total digits and 10 its place values. And then we have a hexadecimal numbers which consists of 16 digits from 0 to 15. 0 to 9, then we have a B, C, D, and F digits. Okay. Hexadecimal actually हम binary तो हम normally हम use करते हैं, लेकिन hexadecimal for representation use होती है, for representing color codes, for representing error codes. Then we have इसमें memory addresses को represent करना हो, तो हेक्साडेसिमल वैल्यूज को यूज किया जाता है। 3-4 यूजेस हैं, वेरी सिंपल है, ये भी आपका क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा कि व्हाई हेक्साडेसिमल नंबर आर यूज्ड एंड व्हाई हेक्साडेसिमल नंबर, इसका एडवांटेज क्या है, कंप्यूटर क्यों यूज करता है, इसका एडवांटेजेस भी एक तो मैंने आपको बता दी। बिकॉज हेक्साडेसिमल नंबर रिड्यूस हो जाता है, बाइनरी को रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आपका शॉर्ट नोटेशंस है, जब रिड्यूस हो जाती है कोई चीज, स्मॉल हो जाती है, तो उसको रिमेम्बर करना इजी है, उसको यूज करना, लिखना, एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। मीन आपकी टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, लेंथी नंबर आप लिखेंगे 64 डिजिट्स का, तो उसमें कहीं भी मिस्टेक हो सकती है आपकी टाइपिंग। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में छोटा नंबर लिखिए, उसमें मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं, तो इसमें एरर के चांसेस लेस हो जाते हैं, अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है, प्रोग्रामिंग में इजी हो जाती है, आपके लेस टाइम कंज्यूम होता है इनपुट करने के लिए आपको वैल्यूज। ठीक है, रिमेम्बर करना इजी हो जाता है। तो हेक्साडेसिमल नंबर्स जस्ट इसी पर्पस के लिए हैं कि आप उसको ये रिप्रेजेंट करेंगे, डिफरेंट चीजों को कंप्यूटर रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली अपने इंटरनल जितना भी डाटा है वो एग्जाम में ही शो होती है। ठीक है, देन कन्वर्जन हमने देख ली 2 तरह के, बाइनरी टू डेनरी एंड देन डेनरी टू बाइनरी। इसमें हमारे पास प्लेस वैल्यूज को हम यूज करते हैं अगर आपने बाइनरी से डेनरी में कन्वर्ट करना। बाइनरी की प्लेस वैल्यूज लिखे 1 2 4 8 डिजिट्स के ऊपर, देन मल्टीप्लाई द प्लेस वैल्यू विद द डिजिट एंड ऐड देम, यू विल गेट अ डेनरी नंबर। और दूसरा है डेनरी टू बाइनरी, कैसे जाना है आपने, जस्ट डिवीजन एंड रिमाइंडर मेथड है, डिवाइड द नंबर डेनरी नंबर विद 2 और उसके रिमाइंडर्स आप नोट करते जाएं, एंड फ्रॉम बॉटम टू टॉप ये रिमाइंडर्स आप नोट कर लें, लिखिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आप उसको लिख लें। ठीक है, देन सब्ट्रैक्शन मेथड है कि आप प्लेस वैल्यूज लिखें बाइनरी की, ठीक है, अप टू दैट डिजिट जो भी आप कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उससे ज्यादा बड़ा ना लिखें। तो देन सब्ट्रैक्ट करते जाएं हाईएस्ट प्लेस वैल्यू फ्रॉम द डिजिट्स। ठीक है, और जो वैल्यूज आपकी सब्ट्रैक्ट होंगी उस प्लेस वैल्यू के लिए आप 1 लिखते हैं, जो सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे उसको 0 कर दें। ठीक है, तो इससे भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए ओके, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी दोबारा, हम इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। कुछ आप लोग इसको सॉल्व करें, एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 में। आप ये बुक अभी व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ, इसकी एक्टिविटीज को सॉल्व करें।